Good evening, all of you. So today we are going to discuss Sainik School previous year question paper of year 2019. So first question is for Lakshya. Lakshya, read the question with all the options and then do let us know the answer. Out of the following list of Paramveer Chakra (PVC) awards, who was awarded with PVC during Kargil War? Option number A, Lieutenant Colonel Ardeshir Bhuji Bhurji, Tarapore. The option. Option number B, Lieutenant Arun Ketalpal. Option number C, Captain Vikram Batra. Option number D, Major Somnath Sharma. What is the right answer? Ma'am, C number. Yes, Captain Vikram Batra is the right answer for this question. Also one more thing, note down करते जाइए बच्चों, ये आपके important question है. परमवीर चक्र कारगिल वॉर के टाइम पे किसको मिला है? कैप्टन विक्रम बत्रा. ऑल्सो फर्स्ट परमवीर चक्र किसको मिला है? मेजर सोमनाथ शर्मा. ये चीज भी नोट डाउन कर लीजिए. फर्स्ट परमवीर चक्र किसको दिया है? मेजर सोमनाथ शर्मा. नोट डाउन, प्रिपेयर योर नोट्स. दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको नोट डाउन करवा रही हूँ. पॉसिबिलिटीज आर देयर कि अगेन ये रिपीट हो सकता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू गिव ऑप्शन ऑफ अनम्यूटिंग टू अभय शर्मा. अभय, यू आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट स्लाइड. प्रिपेयर योर नोट्स बेटा. एक फेयर नोटबुक अपनी बना लीजिए और जीके और उसमें सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करते जाइए. चलिए अभय, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. Which state among the following has adopted Sanskrit as its one of the official languages? A. Himachal Pradesh, B. Uttarakhand, C. Rajasthan, and D. Uttar Pradesh. What is the right answer? Right answer. अभी आपका बैच स्टार्ट हुआ है तो चांसेस आर देयर कि आपको नहीं पता है. कोई इशू नहीं है, यू कैन गिव इट अ गेस. यस दिया, व्हाट इज द राइट आंसर? Ma'am, Uttarakhand. यस, उत्तराखंड इज द राइट आंसर. Okay, ma'am. ओके बच्चा. So Uttarakhand has become the first state in India to declare Sanskrit as an official language. संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज किसने डिक्लेयर किया? उत्तराखंड स्टेट में डिक्लेयर किया. चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक टू नेहा. नेहा बच्चा, यू आर गोइंग टू रीड दिस स्लाइड. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिएगा. कंटिन्यू नेहा. Who is the current Vice President of India? Option A, Shri Narendra Modi. Option B, Shri Venkaiah Naidu. Venkaiah Naidu. Option B, Shri Venkaiah Naidu. Option C, Shri Arun Jaitley. Option D, Shri Ram Nath Kovind. What is the right answer? Yes, Aditi. Ma'am, Shri Ram Nath Kovind. Nath Kovind. Question is about vice president. सब बच्चे सेम मिस्टेक कर रहे हैं. एवरी बैच आई टोल्ड यू, जब भी कोई क्वेश्चन रीड करना है, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस. 2 बार रीड करिए क्वेश्चन को. यस लक्ष्य. हु इज द वाइस प्रेसिडेंट? नव्या. Ma'am, Shri Venkaiah Naidu. Ma'am, Shri Venkaiah Naidu. Yes, Venkaiah Naidu. P. Vice President. Ma'am, Ramnath Kovind is our Is our president. Yes. So Ramnath Kovind is our. Sorry. So Ramnath Kovind is our president and vice president is Shri Venkaiah Naidu. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर दीक्षा. दिया, सॉरी, दिया, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, ma'am.
A medical practitioner specializing in children and their diseases is. Ma'am, the answer Options. option A geologist, B pediatrician, C cardiologist, D neurologist. So, ma'am, answer is B option. बी. सो ये क्या करना है? फ्रॉम बर्थ से लेकर के एट द एज ऑफ 16, birth till the age of Ma'am, it 16, came in science. they deal with the physical, behavioral and mental health of children. So they are called pediatrician. So ये डील करते हैं बच्चों की हेल्थ के साथ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यस दिया. यू वांटेड टू से समथिंग बेटा? बोलो. No, ma'am. ओके बच्चा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अदिति. A group of stars is called a solar system, constellations, planets, comets. Ma'am, answer will be comets. Comets? No. Yes, Daksh, what is the right answer? Ma'am, answer is B. Constellations. Yes, a group of stars that appears to form a pattern or picture in the sky. They are called constellation. There are total 88 official constellations, but the most famous is, we can say, Saptarishi or 7 sages or 7 monks. क्वेश्चन आ चुका है कि सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन को वेस्टर्न कंट्रीज में क्या कहा जाता है? तो 7 सेजेस कहा जाता है या फिर 7 मॉन्क्स कहा जाता है. तो यहाँ से क्वेश्चन ये कुछ इस तरह से भी फॉर्म हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गणेश. Yes, ma'am. Yes, Ganesh, read the next slide. Which gas, when solidified, is commonly known as dry ice? Carbon monoxide, nitrous oxide, carbon dioxide, hydrogen peroxide. Carbon dioxide. Yes, carbon dioxide is actually solid frozen, or we can say the dry ice is actually solid frozen carbon dioxide. Chalo, next question is for Navya. Yes, ma'am. Chali, read the next question. The member of Rajya Sabha can have a maximum tenure of how long? Option A 5 years, option B 6 years, option C 7 years, option D 2 years. What is the right answer? Yes, Prabhakar, Daksh, Himanshu Mishra, Aditi. Ma'am, I think 5 years. Yes, Diya. Neha. Ma'am, 6 years. Yes. Okay. अब देखो यहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं. अगेन मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ से यही क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, तो बच्चों ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट लोकसभा. As I told you in our first class, or maybe in the second or third class, that the system we are having on the central level, the same system we are having on the state level. जो सिस्टम हमारे सेंट्रल लेवल पे है, लाइक देयर आर लोकसभा एंड राज्यसभा, तो इन स्टेट लेवल वी आर हैविंग व्हाट वी आर हैविंग दिया. Ma'am, legislative assembly and legislative council. Yes, legislative assembly, LA कर दे रही हूँ मैं बस. Legislative assembly. Okay, first thing. So जो क्वालिफिकेशन लोकसभा की हो रही है और जो टेन्योर लोकसभा का है, सेम लेजिस्लेटिव असेंबली का है. हिमांशु समझ लीजिए, एग्जाम में कुछ नहीं आना है बाद में. बहुत लेट ज्वाइन हुआ है ये बैच, तो आई वांट कि आपको इंपॉर्टेंट चीजें करा दी जाए. सो फोकस एंड स्टार्ट राइटिंग एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम नाउ.
सो ये सेंट्रल लेवल पे है आपका, सेम यहाँ पे स्टेट लेवल पे। अब इनका टेन्योर कितना है, दैट इज 5 years। यहाँ पे भी सेम 5 years है। एज टू बिकम अ लोकसभा मेंबर दैट इज 25 years। जब तक आप 25 साल के नहीं हो जाते तब तक आप लोकसभा मेंबर नहीं बन सकते। सेम यहाँ पे आएगा 25 years। एक और क्वेश्चन लोकसभा से पूछा जाता है, टोटल मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं। सो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 552। मेंबर्स हो सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, मैं अभी आपसे पूछूंगी एट प्रेजेंट कितने हैं इन 2021 इफ somebody asks, so that is 543। बस यही क्वेश्चंस आ रहे हैं लोकसभा से। देखिए सेंट्रल लेवल पे हमारे पास लोकसभा है, स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली। कितने सालों के लिए होता है इनका इलेक्शन, कितने सालों तक अगर आप लोकसभा मेंबर बन जाते हैं तो बिना किसी इंटरप्शन के आप 5 years तक लोकसभा मेंबर बने रह सकते हैं। यहाँ पे भी 5 years है। एज कितनी है लोकसभा मेंबर की, ये क्वालिफिकेशन है, इतनी मिनिमम एज होनी चाहिए, इससे कम में आपको मेंबर नहीं बनाया जाएगा। तो यहाँ पे भी 25 years है, यहाँ पे भी 25 years है। देन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं लोकसभा मेंबर, 552। एंड एट प्रेजेंट हमारे पास कितने लोकसभा मेंबर हैं, देयर आर 543 मेंबर्स। नोट डाउन दिस, इसको नोट डाउन करिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग राज्यसभा। अगेन देख लीजिए, राज्यसभा इज बेसिकली द अपर हाउस। अगेन आपके दो बाइकैमरल है, हमारा जो पार्लियामेंट है दैट इज बाइकैमरल लोकसभा एंड राज्यसभा। सो नाउ जो राज्यसभा है वो भी आपके कहाँ है, सेंट्रल लेवल पे ही है। एंड स्टेट लेवल पर वी आर हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे टेन्योर कितना है, 6 years। यहाँ पे भी कितना है, 6 years। यहाँ पे मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, 250। एट प्रेजेंट कितने हैं 2021 में, 245। अब इन 245 में से भी जो 12 होते हैं, 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। इस 245 में से भी 12 मेंबर्स क्या हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ये जो 12 मेंबर्स हैं बाय नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर। सो लक्ष्य कितनी हो जाएगी, 245 में से 12 हम माइनस करेंगे तो इलेक्टेड कितने हो जाएंगे, 233 बच्चा। Yes, ma'am. 233. ओके, सो आपसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यही क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आपकी लोकसभा एंड राज्यसभा में से यही क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन आता है कि एज। सो वहां पे हमारे लोकसभा के लिए कितनी एज थी, लक्ष्य एज क्या थी लोकसभा के लिए, Ma'am, 25 years. यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 30 years। यहाँ पे भी कितनी एज है, 30 years। अब आगे अगर ये क्वेश्चन आता है रिलेटिंग लोकसभा एंड राज्यसभा, तो ऐसा नहीं होना है कि हमें नहीं आता है मैम, अभी हुआ नहीं है। और अभी बैच आपका थोड़ा सा क्विकली चलेगा। जहां मुझे लगा कि मैं अभी ही टॉपिक में क्लियर कर दूं, मैं वहीं पे क्लियर कर दूंगी। आई विल नॉट वेट कि मैं आगे कभी करवाऊंगी। जब जब मुझे लगेगा क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं वहीं एक्सप्लेन करूंगी। अब भाई बच्चा समझ में आ रहा है, यस मैम। चलो मुझे बताओ लोकसभा के लिए एज क्या है और राज्यसभा के लिए क्या एज है। लोकसभा के लिए 25 years और राज्यसभा के लिए 30 years। वेरी गुड। टेन्योर कितना है लोकसभा का, टेन्योर कितना है, कितने ईयर्स के लिए इलेक्ट होती है मैम 5 years। एंड राज्यसभा 6 years। लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं, मैम मैक्सिमम है 552। वेरी गुड। एट प्रेजेंट क्या है स्ट्रेंथ, मैम 543। वेरी गुड। एंड राज्यसभा में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 250। एट प्रेजेंट कितने हैं, 245। इसमें से नॉमिनेटेड कितने होते हैं बाय प्रेसिडेंट। ऐसे लोगों को नॉमिनेट करते हैं जिनकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट होती है इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर, कुछ भी।
ठीक है, तो उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं डायरेक्ट। तो वो नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होंगे अब है 12 members. So total elected member of the Rajya Sabha will be 233. Very good अभय, आज आपने लर्न कर लिया सारा बेटा, बट स्टिल इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नोट डाउन कर लिया आपने? ठीक है बच्चों, चलिए नाउ गेट बैक टू द क्वेश्चंस। सो मैक्सिमम मेंबर, अगेन हम किससे बात कर रहे थे? क्वेश्चन किसने रीड करा था? नव्या आप रीड कर रहे थे? चलिए, तो बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ राज्यसभा? मैम 6 years. यस, अब हम सीधे आंसर कर सकते हैं रिलेटिंग लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड एक और चीज, प्रेसिडेंट के लिए एज कितनी रिक्वायर्ड है? इफ यू वांट टू बी अ प्रेसिडेंट, सो द एज विल बी 35 years। ये भी लिख लीजिए। प्रेसिडेंट के लिए कितनी एज होनी चाहिए? 35 years। तो 25 लोकसभा, 30 राज्यसभा एंड 35 प्रेसिडेंट। चलिए जी, सो यहाँ पे मैंने और क्वेश्चंस इसमें ऐड करे हुए हैं। एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, कौन है हमारे वाइस प्रेसिडेंट नव्या? अभी हम वी डिस्कस्ड मैम वेंकैया नायडू। यस, तो अब जो वेंकैया नायडू है, जब वो वाइस प्रेसिडेंट बने ना, तो वो ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन बन गए राज्यसभा के। सो जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा, नोट डाउन दिस, इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ऑटोमेटिकली वो चेयरपर्सन बन जाएंगे किसके? राज्यसभा के। उनको कुछ नहीं करना, कोई इलेक्शन नहीं करना, कोई किसी प्रोसेस से नहीं निकलना, डायरेक्टली वो क्या बन जाएंगे? चेयरमैन बन जाएंगे राज्यसभा के। तो ये जो हमारे वेंकैया नायडू जी है, एट प्रेजेंट राज्यसभा के चेयरपर्सन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्तार अब्बास नकवी हैज द लॉन्गेस्ट टोटल टेन्योर लेंथ ऑफ 6339 days। मुख्तार अब्बास नकवी जी का लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है, सबसे ज्यादा। एक और चीज, आई नो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है आपके लिए, बट स्टिल आई हैव टू टेल, ये जो हमारा राज्यसभा है ना बच्चा, दिस इज अ परमानेंट हाउस। अपर हाउस भी कहते हैं हम इसको और परमानेंट हाउस भी कहते हैं। ये पूरा का पूरा कभी खत्म नहीं होता। जैसे लोकसभा एक बार 5 years के लिए आया, पूरा डिसॉल्व हो गया, अगेन न्यू लोकसभा बनेगा, इलेक्शंस होंगे एंड न्यू लोकसभा बनेगा। बट ये जो हमारा राज्यसभा है वो क्या है? दैट इज अ परमानेंट हाउस, परमानेंट बॉडी है। इसके 1/3 मेंबर्स हर 2 years बाद क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2nd year। सो टेन्योर टोटल कितना हो गया? 6 years ऑटोमेटिकली हो गया। अब अगर आपको इसमें से कुछ डाउट हो तो आप एक बार और रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लीजिएगा। स्टिल डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए लेट्स मूव ऑन। किनका टर्न नहीं आया है? प्लीज रेज योर हैंड्स रीडिंग के लिए। जिनका टर्न नहीं आया है प्लीज रेज योर हैंड्स। दक्ष, ओके दक्ष, रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, ma'am. P. Gopichand is associated with which sport? A. Badminton, B. Cricket, C. Football, D. Hockey. Ma'am, answer is A. Badminton. Yes, badminton is the right answer for this question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर प्रभाकर, देन हम हिमांशु से बात करेंगे। यस प्रभाकर, कंटिन्यू। Where is Prabhakar? Continue बच्चा। Ma'am, which of the following company does not sell mobile? Apple, BSNL, HP, Sony. Ma'am, answer is B part BSNL. हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी अदिति, कुछ कहना है आपने? You are raising your hand. Ma'am, I have raised my hand for giving answer. Just a minute, I will give you option. आपने ऑलरेडी रीड कर दिया है। देखो बच्चों, अभी क्वेश्चन कब का है? 2019। तो 2019 की प्रोस्पेक्टस से अगर हम देखेंगे, so the correct answer is Sony, cause 2019, in May 2019, Sony announced exit from the smartphone market
in India. But at present जो प्रभाकर ने बोला है that is right answer. 2021 के according BSNL is the right answer and 2019 के according Sony was the right answer. Okay प्रभाकर, अभी आपने जो आंसर दिया that is correct. But उस टाइम पे ये पेपर कॉस्ट 2019 का है तो हमने दोनों ही चीजें डिस्कस कर ली. चलिए हिमांशु एंड देन अक्षत आप रीड करेंगे. A vehicle capable of traveling over land and water is called hovercraft, rovercraft, movercraft, car. Ma'am, the correct answer is a hovercraft. Yes, hovercraft is the right answer. These are basically amphibious wheels. They can travel both on land and water. चलिए. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.